हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ओके। आज आपके अपने चैनल पीके पाठशाला पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के रूप में जाने जाने वाला टाइट्रेशन हम सीख तो लेते हैं कि कैसे इस प्रैक्टिकल को करते हैं, लेकिन कैसे इसे हम नोटबुक में या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखते हैं। इट मीन्स हाउ टू राइट द टाइट्रेशन प्रैक्टिकल इन योर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। ओके, तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इस टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल को लिखें, क्या क्या हेडिंग मेंशन करें और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखें। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या कहता है कि टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ N/20 ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन इन 250 ml and with the help of this solution determine the strength of unknown sodium hydroxide solution in ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब यह है कि आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है, किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। कितने में? 250 ml सोल्यूशन में। और इसी सोल्यूशन से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकालना है। ओके, then we write the next heading, that is apparatus required. Which type of apparatus required during this titration? That is burette, pipette, burette stand, measuring flask, beaker, funnel, wet box and watch glass. Then you write the next heading, that is chemical required in this titration: oxalic acid, sodium hydroxide, distilled water and phenolphthalein indicator. Then we write the next heading, that is principle. This is a acid base titration. In this titration, strong base neutralizes with acid. Means you write the reaction involved in this titration कि एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो आप भी जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड, that is COOH bond COOH.2H2, this is the formula of oxalic acid, plus 2NaOH, that is the sodium hydroxide, when it react together to form the sodium oxalate, that is COONA bond COONA, along with the 4 molecule of water. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस टाइट्रेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो आपको एक ही चीज मेंशन करना है, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन, दैट इज रिएक्शन बिटवीन oxalic acid and sodium hydroxide. Okay, then we write the next heading, that is theory. In this titration, the external indicators such as phenolphthalein, which is also called acid base indicator, means in acid it show the colorless and in basic medium it show the light pink color, and it determine the end point of reaction. Okay, it means what you write in this theory. In this titration, external indicators such as phenolphthalein or acid base indicator are used and detect the end point of reaction by changing the color into the light pink. मैंने आपको पहले भी कहा कि इंडिकेटर फिनोल्फथालीन बेसिक में लाइट पिंक कलर दे देता है और एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं होता है। जैसे ही बेस को जब हम एसिड में ऐड करेंगे तो यह कंप्लीट होने के बाद ये अपना कलर शो कर देते हैं, जिसे हम लाइट पिंक कलर बोलते हैं। In acidic medium, indicator phenolphthalein show colorless, and in basic medium it gives light pink color. Then after you write the next heading, that is method, the preparation of standard solution. कैसे आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का बनाएंगे? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन कितना है। तो आपके ऑब्जेक्ट में मेंशन है N/20 ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml. इट मीन्स
Preparation of N/20 oxalic acid in 250 ml solution by using the formula that is W equal to NeV upon 1000। एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें हम ये पता करते हैं कि किसी भी सोल्यूशन का अगर वेट हमें पता करना हो कि कितना हमें वेट लेना है, तो लगाएंगे फार्मूला NeV upon 1000 where N equal to normality and the normality of solution is 1/20 gram equivalent per liter. Volume of solution B, that is volume of solution, and the volume of solution is 250 ml, and A is the equivalent weight of substance, that is the oxalic acid. तो N की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट वेट हमें कैसे निकालना है, वह आपके फार्मूले दैट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी, क्योंकि एसिड है तो इसको हम बेसिसिटी से डिवाइड कर इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑक्सैलिक एसिड का कितना मिल जाता है, 63। ओके, then we calculate weight of oxalic acid of N/20 in 250 ml solution, that is NeV upon 1000, 1 into 63 into 250 divided by 20 into 1000। तो फाइनली आपको वैल्यू मिल जाता है W ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू 0.79 ग्राम। यानी कि एक चीज़ आपको पता चल गया कि जब हमें ऑक्सैलिक एसिड का जो सोल्यूशन बनाना है उसमें ऑक्सैलिक एसिड का वेट कितना लेना है, 0.79 ग्राम लेना है। ओके, देन यू राइट द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज वेइंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इस ऑक्सैलिक एसिड का वेइंग हम 4 स्टेप में करते हैं। कैसे? द फर्स्ट स्टेप दैट इज वेट ऑफ इम्पटी वॉच ग्लास। आपको इम्पटी वॉच ग्लास का सबसे पहले वेट करना है, और आपको पता है इसका वेट हम डेसिमल के कितने पॉइंट तक करेंगे, डेसिमल के 4 पॉइंट तक करेंगे। ओके, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉरी वेट ऑफ इम्पटी वॉच ग्लास, जो W1 के नाम से जाना जाएगा। देन अगेन यू वेट द इम्पटी वॉच ग्लास एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका रिप्रेजेंट कर देगा W2। and the third weight of watch glass after removal of oxalic acid, that is W3 means जब आप ऑक्सैलिक एसिड को मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे तो वॉच ग्लास में कुछ अमाउंट रह जाता है ऑक्सैलिक एसिड का, तो उसे भी आपको वेट करना है। तो जैसे ही हम रिमूव कर देते हैं ऑक्सैलिक एसिड का तो ऑक्सैलिक एसिड चला तो जाता है, लेकिन कुछ उसका ड्रॉप उस वॉच ग्लास पे रहने के कारण हमें दोबारा उसको वेट करना पड़ता है। तो जब आप इसका वेट करेंगे तो वो आपका W3 बताएगा। और चौथा पॉइंट आपका वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml सोल्यूशन, मतलब कि जब आप ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें मेनली जा कितना रहा है ऑक्सैलिक एसिड का, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कैसे निकाल लेंगे, जब आप W2 को W3 से माइनस कर देंगे W2 माइनस W3 कर देंगे, यानी W2 में से W3 को घटा देंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि जो हमारा 250 ml का सोल्यूशन है उसमें कितना ऑक्सैलिक एसिड गया है। ओके, देन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज वेट विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल बैलेंस एंड पोर इनटू द मेजरिंग फ्लास्क। जब आप उसको वेट कर लेते हैं तो उसको मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र करते हैं in a little amount of water and make clear transparent solution, then make up the volume up to 250 ml। कहना ये चाह रहा है कि जब आप उसका वॉल्यूम वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वेट लेने के बाद जब आप उसको मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करने के दौरान आप ध्यान देंगे कि पहले थोड़े से अमाउंट में डालकर उसका हम क्लियर सोल्यूशन दैट इज होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेते हैं, और फिर उसका वॉल्यूम हमें जितना चाहिए 250 ml उसको हम वहाँ तक मेकअप कर लेते हैं। ओके, देन अगेन वी राइट
द इंडिकेटर विच आर यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन दैट इज फिनोप्थलीन इंडिकेटर, आप जान ही रहे हैं. देन वी टेक द ऑब्जर्वेशन. अब आप ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालेंगे. ऑब्जर्वेशन में क्या है कि टाइट्रेशन करते हैं जो ऑक्सैलिक एसिड और NaOH का, उसमें हमें मालूम मिलता है कि कितना वॉल्यूम हमारा NaOH का ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है. तो हमें रीडिंग मिलती है जिसे हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं इसमें. द फर्स्ट कॉलम इज फॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सेकंड कॉलम इज फॉर ब्यूरेट रीडिंग जो कि एक NaOH सोल्यूशन का है, और तीसरा कॉलम आपका वॉल्यूम कितना कंज्यूम हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड देन द लास्ट कॉलम इज फॉर कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग. ओके. Calculation of this titration, that is strength of unknown solution with the help of standard oxalic acid, that is oxalic acid and sodium hydroxide. तो आप इक्वेशन लगा देंगे N1V1 equal to N2V2, N1V1 for the oxalic acid and N2V2 for the sodium hydroxide, and you finally calculate the strength or concentration of the sodium hydroxide solution, that is N2, and the N2 is 0.0534 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. तो आपने कंसंट्रेशन ये निकाल तो लिया, लेकिन कंसंट्रेशन की जो यूनिट मेंशन हो रही है वह ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो रहा है, लेकिन आपको टास्क में दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट में कहा जा रहा है कि यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर. देन हाउ टू कैलकुलेट the strength into gram per liter with the help of a formula, that is formula is gram per liter strength equal to normality into equivalent weight of sodium hydroxide. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो आपको पता है NaOH का जो मोलर मास है 40 है, और उसका अपना एसिडिटी कितना होता है 1, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 दैट यू गॉट 40. द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40. देन यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मेलिटी, that is 0.0534 into 40 and you got 2.136, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ में कितना आ गया है 2.136 ग्राम पर लीटर. एंड देन लास्ट यू राइट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रिजल्ट. द रिजल्ट ऑफ दिस टाइट्रेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH solution is 2.136 ग्राम पर लीटर. ओके बच्चों, तो आप इस प्रैक्टिकल को इसी तरीके से जैसे इस पे दिखाया गया है आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे, और इससे पूछे गए क्वेश्चन को आप भली भांति समझ कर आंसर देंगे. ओके, थैंक यू.